कश्मीर मैराथन 2025 बिलाखिर इख्ताम पजीर हुई और एक मेगा जो मैराथन है उसका इनेकाद यहाँ पे हुआ और लगभग 1500 से ज़ायद एथलीट्स ने इस मेगा मैराथन में हिस्सा लिया। और न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं वो भी इस दौड़ का हिस्सा बने और यकीनी तौर पर एक मैसेज दी गई कश्मीर से जो हर सू एक पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर फैलाने की जो है वो संभावना है और वो कोशिश की गई है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कि एक पॉजिटिव मैसेज कश्मीर से जाए। तो जिस तरह से हमने कहा कि इंटरनेशनल एथलीट्स भी जो है इस दौड़ का हिस्सा बने। सो वी हैव विद अस द फ्रेंड्स फ्रॉम जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक। योर नेम? My name is Teresa Hrchova. Tell me your first-hand experience regarding this very marathon. I ran today half marathon. I was second, and it was very nice experience. We ran around a nice lake, and the nature around was very beautiful. What was the reaction of people when you became the part of this marathon, and what was your experience when you ran besides the Dal Lake and among these beautiful meadows, among these beautiful valleys? The people here is very kind, and they want lots of picture with me. And the nature around the lake was beautiful. Yeah. Was this your first visit to Kashmir? I hope. This was your first visit? Yeah, first visit. Yeah. Was there any apprehension before your arrival, before you arrived at Kashmir? Was there any apprehension, any threat in your heart? I don't know about Kashmir much. That I only know that it's near the big mountains. Okay, what would be your message across the globe regarding Kashmir? I think it's a very beautiful place, and if somebody like running and nice nature and traveling, they should come. Thank you very much. Your name, sir? Michael Cross, You're from? Germany. Tell me your first-hand experience regarding this very marathon. You are a part of this mega marathon. Basically, it was very good. As Teresa said, the people here are very friendly. Organization for the second edition was also quite good. Few things we can improve, but it's normal, you know. And so we're gonna be looking forward to coming back next year for the third edition. And we liked it so much, and we're gonna do a little bit sightseeing here to enjoy the area, and then we know also more about Kashmir. Okay. Is your first visit to Kashmir? Yes, definitely. Even though I had also athletes last year, but I was not here personally, so I followed it online. But now I'm here, and I'm grateful, and thanks for organization team for the invitation. So, what would be your message across the globe to the people who don't want to come here because of several reasons? Yeah, it's a quite safe place, I can say. I have been to some places in the world who are not that safe, so I can say they can come here. It's a very beautiful area with a lake, with the big mountains, so they can come, enjoy, do tourism here, maybe participate also in the running event next year, and enjoy the atmosphere, also the quite positive and friendly people. Yeah. Was there any apprehension in your heart before you arrived here regarding Kashmir, as there's a lot of negativity, negative message across the globe regarding Kashmir? Yeah, a little bit. For me now, I'm also a positive person in general, but I've heard a lot of stories in the media, especially in Europe where I come from, now for the things that happened this year here. So, but I know also this happens in other parts of the world, and you know, I train also Kenyan athletes, and we had bigger issues there, like in Nairobi this year. And therefore I think Kashmir, Srinagar, quite safe place. So looking forward to coming back, as I said. There are some advisories of Western countries, European countries, not to visit Kashmir. So what would be your message to those countries, as you have experienced yourself the situation of Kashmir? When a person is open-minded, he or she could try to come here also. I know that everyone likes to visit other countries. You know, we have also people that just want to travel in Europe. It's also a long flight, you have to understand. But those who are open-minded to travel like to other places in the world, like America, like Australia, like other parts of Southeastern Asia, also Japan, China, they can also come here, in my opinion, to see the beautiful area here, to connect with those friendly people. And then at the end of the day, all people will be happy. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. आपका नाम? प्रिंस महाजन। कहाँ से आप? जम्मू से सर। जम्मू से। तो अभी आप इस दौड़ का हिस्सा बने, तो किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, फर्स्ट टाइम था, 42 किलोमीटर्स किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और लुकिंग फॉरवर्ड और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक करें, फिर से आएँ। और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया और ट्राई करेंगे फिर अगली बार टाइम थोड़ा कम लें। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। यस।
आप नाम? रिंकू, कहाँ से? जम्मू से सर। तो ये बताइए रिंकू जी, कितना अच्छा लगा आज आपको एक बड़ी दौड़ जो थी उसका हिस्सा आप बने, और साथ ही साथ न सिर्फ हमारे नेशनल एथलीट्स बल्कि इंटरनेशनल एथलीट्स उनके साथ आप दौड़े? सर बहुत ही अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम था तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा आया, तो ट्राई करेंगे हम कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा टाइम आए, और यही बोलना चाहेंगे कि बाकी जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करें और अपना इनाम ले जो भी है। तो एक और फिनिशर हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं तो इन्होंने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया और फिनिशिंग लाइन तक ये पहुंचे हैं। नाम अपना? My name is Moeed Rasool. So I am very thankful to the departments who have conducted this marathon here. So you are the host? Huh? Yeah, You are Kashmiri, so you are I'm the from, host. yeah, exactly. So basically the contribution of the JNK Tourism Department and Police Department and other departments, SMC, so they have played a great role in making this marathon very successful. So one of the important thing why I have seen that most of the winners, they were from the outside country. That means we are not giving more attention towards the sports. We are only dealing with the studies. Our main aim is to become a doctor, engineer and other professions. But in the sports, we should give more attention, and we should make our youngsters fit for the physical activities, and they should participate in the marathons, and they should prepare for this such that we should get the more and more awards, and that will be a great success for us in the field of sports. तो क्या मैसेज रहेगा ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब, जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो यूथ है ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहा है इस तरह के स्पोर्ट्स में, हालांकि क्रिकेट में हम आगे बढ़ रहे हैं, फुटबॉल में, बाकी चीज़ें में, लेकिन अगर मैराथन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं? जी हाँ, मैराथन में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें कि डिस्टेंस जो होती है, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, यहाँ पर बंदे का स्टेमिना पता चलता है। तो मेन यहाँ पे क्या देखा गया कि हमारी चाहे हमारे फीमेल मोस्टली और मेल्स फ्यू परसेंटेज इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स के साथ। सो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, इसके साथ साथ हमें मोर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि हमारा हेल्थ भी अच्छा बन सके और हम फिज़िकली फिट रहे। यही इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि गिव मोर अटेंशन टुवर्ड्स योर हेल्थ आल्सो, टू बी फिट एंड टू बी हैप्पी इन द लाइफ। जी थैंक तो ओवरऑल अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए आज का ये इवेंट जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स का ये भी कहना है कि टूरिज्म जो कि बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, तो उस हवाले से उसको बूस्ट देने के लिए भी इस तरह के इवेंट्स जो है काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी जो है राय पेश की, लेकिन ओवरऑल अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे तो किस तरह से आपको लगता है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए इस तरह के इवेंट्स? ये इवेंट्स देखो, हम यहाँ पे इवेंट्स कर रहे थे, मैं एक इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से था, तो ये इवेंट्स हम बार बार चाहते हैं। लास्ट ईयर जो हमने इवेंट किया था, मतलब रेशो उस हिसाब से इस साल बहुत ही रेशो बढ़ गया था, और इससे क्या होगा जो हमारे यूथ से एक एनकरेजमेंट मिल जाएगी। ये मतलब जो टूरिज्म कर रहा है ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, और ये भी देखा गया कि जो टूरिज्म ने आजकल किया, ये इस टाइम किया था, मतलब वो मीनिंगलेस था, वो बहुत ही बढ़िया था, मीनिंगफुल था, वो बहुत ही बढ़िया था, उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, पुलिस था, म्यूनिसिपलिटीज़ थी या टूरिज्म था, ये बहुत अच्छा था। इससे यही मैसेज, मतलब जो बाहर के लोग आए, बैरून मुल्क से लोग आए, यही मैसेज हम लोगों को मिल गई कि बस स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा सा ध्यान दे दो। इस दौड़ का खूबसूरत पहलू ये भी रहा कि महिलाएं जो है, यानी कि ख़वातीन जो है, इसका बड़ी जो है पैमाने पर हिस्सा बनी, और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है। आपका नाम? अनुपमा सुशील, कहाँ से? दिल्ली से। तो ये बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ब्यूटीफुल डल लेक एक साइड से, ज़बरवन पहाड़ियाँ दूसरी साइड से, और ऐसे में ब्यूटीफुल वैलीज़ के बीच में मैराथन का इनेकाद? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। मेरे लिए इतनी ठंड में भी दौड़ना थोड़ा मुश्किल था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। और जो सीनिक रोड है उस पे दौड़ने का अलग ही मज़ा था, एक जो हमें दिल्ली में नहीं मिलता। बट यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेट भी अच्छा था, और रूट का तो क्या कहना, आई थिंक उसी की वजह से है कि हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, और अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। तो नारी शक्ति का किस तरह से ये एक मिसाल बनी ये दौड़, जिस तरह से हमने देखा कि न सिर्फ हमारे देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल की एथलीट्स भी जो हैं, वुमेन एथलीट्स, वो इसमें धीरे धीरे कर फीमेल्स भी ये रन्स और अदर एथलेटिक परफॉर्मेंसेस में आगे आ रही हैं। नंबर्स उतने नहीं हैं अभी, बट फिर भी अच्छा लगता है जब हम देखते हैं। पहले 5-10 होती थी, अब
20-30 नंबर बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और अपने अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वो बहुत ही सबके लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग मिसाल है। तो मैसेज क्या रहेगा अक्रॉस द ग्लोब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर की एक नेगेटिव जो है पब्लिसिटी बाहर जा रही है और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अब भी जो है एडवाइजरीज लगा रखी है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो क्या मैसेज रहेगा अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर? Kashmir is really beautiful. It is like they say it's mini Switzerland of India, and यहाँ के लोग बहुत hospitable हैं and it's absolutely safe right now, no issues and बहुत ही welcoming है। जहाँ जाते हैं बहुत ही मीठी ढंग से बात करते हैं, इतनी मिठास है उनमें और कहवा तो लाजवाब है यहाँ का और वाजवान। सो जो भी सोच रहे हैं कश्मीर आने के लिए, मेरा यही एडवाइस है, प्लीज़ डोंट डिले इट। आप आके इस हॉस्पिटैलिटी और इस ब्यूटीफुल नेचर को प्लीज़ एक्सपीरियंस करिए। दैट्स द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव। कश्मीरी वुमेन के लिए मैसेज? कश्मीरी वुमेन के लिए ये मैसेज है दैट दे शुड कम आउट एंड पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स एंड उससे उनको और भी इट इज़ अ साइन ऑफ फेमिनिन एम्पावरमेंट। The government, holding such an event itself means that the place is safe right now. They're trying their best. State government अपना पूरा जोर लगा रही है और women should feel encouraged to come out. We have with us a good friend from Kenya, John. John, tell me your first-hand experience regarding this very marathon, and you ran across the meadows, across the beautiful valleys of Kashmir. What was your experience? Wow. First, thank you very much for having me. My name is John Ekiru Kelai, the former gold medalist in Commonwealth Games Marathon, the year 2010 in Delhi. So my experience here today is really inspiring because of the nature of Kashmir, the community, and we also appreciate the warm reception that we were given by the organizers and the people of Kashmir. The course that we ran today was just awesome. We really enjoyed the breeze from the lake, and the cheering along the road, the beauty of the birds singing. So it was really very inspiring. Yeah. Had you ever been to Kashmir before this? Not really. This This was is your my first first time. Yes. This is my first time to Kashmir. Before arriving here, was there any apprehension, any threat in your mind or heart, because there are a lot of negative publicity across the globe regarding Kashmir? Oh, that is a good question. When I came, I had that kind of mind in my mind because Kashmir has been outside there. It's perceived as if it's a hostile environment where you cannot come and look such a nature beauties around here. But when I got here, it was a total different experience, and I would also want to send this message to the world. What people talk outside there is not the reality. The reality is different. This is just like a paradise on earth. I really appreciate so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये कीनिया से जॉन आए हैं, तो इनका ये कहना है कि कश्मीर आने से पहले तरह तरह के खदशात, तरह तरह के जो है स्केयर्स इनके दिल में थे, इनके माइंड में थे कि कश्मीर में हालात जो है वो ठीक नहीं है। और ये बता रहे हैं कि इसकी वजह ये है कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो बाहर जा रही है कश्मीर के हवाले से, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचे तो हालात कुछ और थे और यहाँ का जो वार्म वेलकम लोगों की तरफ से दिया गया तो यकीनी तौर पर इनके जो खदशात थे, इनका जो डर था वो दूर हुआ और इस तरह के जो यहाँ पर पीसफुल हालात है तो उनका भी इन्होंने तज़किरा किया। तो यकीनी तौर पर जो ऑर्गेनाइजर्स ने एक अच्छा कदम उठाया है, जो कश्मीर मैराथन है, न सिर्फ यहाँ के लोकल टैलेंट को बूस्ट करने की एक कोशिश है बल्कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए भी एक कारगर कदम समझा जाता है। और जिस तरह से जो इंटरनेशनल एथलीट्स भी इस दौड़ का हिस्सा बने तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये एक एम्बेसडर की हैसियत से अपने अपने ममालिक जाएंगे। और जिस तरह से जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ भी कुछ देशों ने, कुछ ममालिक ने रखी है कश्मीर ना विज़िट करे अपने सिटीजन्स को, तो उस हवाले से एक पॉजिटिव मैसेज यकीनी तौर पर आज कश्मीर से बाहर गया। और ऐसा भी जो है उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये बहैसियत एम्बेसडर, ये लोग, ये एथलीट जो है काम करेंगे और कश्मीर के तई एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो अक्रॉस द ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आप अक्षा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।